am from Gajara English Medium School. Today we are going to discuss Standard 12 topic, that is from organisms and population. It is a relationship between two different kind of a species which is beneficial for both the species. That relationship is known as the mutualism. That is also known as the symbiotic relationship. This is a positive aspect of both the species. Rhizobium bacteria living in the soil, and this bacteria having a association with the higher plant root system. This is the leguminous plant body root system. They are having a tap root kind of the system, that is the fibrous, closely associated with the soil particles. The pulses which have this kind of the root system, this root hair, they release specific chemicals within the soil, right? So bacteria which is found in the soil, they are attracted by these chemicals which is released by the pulses or leguminous plant body root system. Slowly this bacteria invaded by this root hair, and within the root hair this whole colony of bacteria is going to be established within. See, now slowly what happened, this bacteria reproduce and make a whole colony within the root system, and it is form a nodules within a root. It is look like this. Now we let see about how this bacteria is useful for the plant body. This bacteria possess NIF gene. This gene specially associated with the nitrogen fixation. My dear students, as you know, nitrogen is present 78% in the air, but not a single plant on this world use directly this nitrogen to synthesize their food. So rhizobium bacteria which is associated with the leguminous plant body have capacity to fix this nitrogen within a soil in the form of NO2 minus, nitrate and nitrite, NO3 minus. This nitrate and nitrite utilized easily by this root system, and root system utilizing this nitrogen in the formation of the food, and this food mainly a source of protein. So here nitrate and nitrite utilized by the plant and they synthesize protein. So that means for the protein formation they need nitrogen, पर ये नाइट्रोजन उसको डायरेक्टली मिल सकता नहीं है. सो दिस नाइट्रोजन फिक्स बाय दिस बैक्टीरिया. सो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे दोनों के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट हुआ? फॉर राइजोबियम प्लांट क्या प्रोवाइड कर रहा है? तो प्लांट प्रोवाइड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, राइट? तो बैक्टीरिया को यहाँ पे क्या मिल रहा है? शेल्टर मिल रहा है. एंड फ्रॉम बैक्टीरिया प्लांट को क्या मिल रहा है? NO2 माइनस, NO3 माइनस एज अ न्यूट्रिएंट. तो यहाँ पे both the species A and B beneficial for each other, and that's why this relationship is known as the symbiotic relationship. Now we are going to take another example of this symbiotic relationship. As we know, Coelenterata organisms, in that polyps forms के अंदर sedentary life जीने वाला sea anemone which is guarded with the tentacles, and this tentacles are specialized because it consisting of nidoblast cells, and that's why it is also known as the cnidarians. They have special sting cells. The sting cell is known as the or which is responsible for catching prey. So ये जो सी एनीमोन है, वो सी एनीमोन के टेंटेकल्स के अंदर there is a presence of specialized cell, and that is the nidoblast. And so for that this phylum is also known as, and this organism is also known as cnidarians. अभी ये जो cnidarians है उसके टेंटिकल्स के बीच में एक छोटी सी फिश जो है क्लाउन फिश, वो क्लाउन फिश यहाँ पे आके रहने लगती है. तो ये जो क्लाउन फिश है उसको यहाँ पे क्या फ़ायदा है कि ये स्टिंगिंग सेल की वजह से ये जो फिश है उसका उनके जो
प्रेडेटर्स है, मतलब उसको जो खाने वाले हैं उससे उसका प्रोटेक्शन मिलता है। और ये जो क्लाउन फिश है, ऐसा माना जाता है, सम साइंटिस्ट बिलीव्ड दैट on the body of this fish there is a presence of specific mucous substance which give a protection to sea anemone, and it also provide nutrient to the sea anemone. So here this is the another example of a sea anemone and a clownfish which is found in the water. Another most important examples of the mutualism is mycorrhiza. Mycorrhiza is a symbiotic association between fungus. Mostly we know that fungus is also useful in the form of baking baker's item like bread and dough of a cake वगैरह, idli and dosa and jalebi. For that we are going to use a fungus as a fermenter. So fungus is associated with the higher plant root system. As you know, my dear student, root system of a higher plant, we can take an example of cycas and pinus. Cycas plant and pinus plant root system is associated with the fungus. As you know, my dear students, fungus body is made up of mycelium, which is a filamentous body, and it increase surface area. My dear students, अभी surface area increase कर लिया, उसका मतलब है कि जितना भी nutrient है in the soil, it is going to be absorbed by this fungus only. So mycelium of the fungus absorb nutrient from the soil, और ये सारा का सारा जो nutrient उन्होंने absorption करा, that absorption or minerals that is provided to the higher plant root system. Now this higher plant root system get this all nutrient and developed well. This relationship in which both the organisms are beneficial, and if one organism is going to be evolved, one organism is going to be increase in a size, in structure, in form, or in any physiological process, that means the other organism which is depending on them, it is also going to be increased, and that's why it is also known as the co-evolution. Now I would like to explain you one most important example. My dear student, it is a relationship in which if one species is going to be increased in a size, structure, so dependency रखने वाला दूसरा organisms भी going to be evolved, and that's why here we are going to take an example of a fig plant. As you know, my dear students, fig plant is known as the Ficus bengalensis, जो हम लोग अंजीर वगैरह खाते हैं. That fig plant has special inflorescence. In that, thalamus become fleshy and covered whole inflorescence like this. Their inflorescence is look like a bulb. Here in this bulb, there is a presence of a flower. At the top, there is a presence of a male flower. At the top, there is a presence of a male flower on the both the side. So, the hypenthodium, this special kind of inflorescence is known as the hypenthodium, in which male flower present at the top. It is a sign through which we are going to explain the male flower. There is a presence of the female flower. So यहाँ पे base में कौन से flower है? Female flowers है. So these all are the female flowers. And in between them, there is a presence of neuter flower, or you can say it is a gel flower, जो कि sterile होते हैं. जो कि कैसे होते हैं? Sterile होते हैं. तो my dear students, यहाँ पे ये पूरा का पूरा flower का cluster है जो thalamus से covered हो गया है, right? जो fig का inflorescence, suppose करो कि flower अगर exposed होता along with its anther, तो pollen grain दिखाई देती, तो insect visit करते और pollination हो जाता. You know, my dear students, pollination means transfer of pollen grain from one flower to another. पर यहाँ पे होना क्या है कि पूरा hypenthodium है, मतलब thalamus पूरा का पूरा cover कर रहा है flower को.
फ्लावर को कवर कर रहा है, उसका मतलब है कि एंथर में से रिलीज्ड पोलन ग्रेन तो यहाँ दिखाई नहीं दे रही। सो स्पेशलाइज्ड फिग प्लांट के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स वेस्प, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेस्प इज अ स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट। तो ये जो वेस्प है, फीमेल वेस्प, ये फीमेल वेस्प का बॉडी यहाँ पे विजिट करते करते यहाँ से ये एंटर होगा, यहाँ से ट्रांसफर होगा। तो जब वो यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है माय डियर स्टूडेंट, तो उसकी जो विंग्स है उसके ऊपर इनके पोलन ग्रेन, क्योंकि यहाँ पे मेल फ्लावर है तो इसके पोलन ग्रेन है, इसकी सरफेस पे अटैच हो जाएंगे। नाउ ये जो इंसेक्ट है वो यहाँ से ट्रांसफर होते 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 यहाँ पे कोई सेफ प्लेस फाइंड करेगा, और जैसे ही उसको सेफ प्लेस मिल जाएगा तो यहाँ पे ये फीमेल वेस्प अपने अंडों को, एग्स को ले कर देगा, राइट। तो यहाँ पे फीमेल वेस्प ने अपने एग्स को क्या कर दिया, ले कर दिया। नाउ व्हाट हैपन कि वेस्प जब उसको विजिट करती है तो आफ्टर लेइंग ऑफ एग्स ये जो फीमेल वेस्प है वो मर जाती है। तो जो मेल फ्लावर से उठाई गई पोलन ग्रेन है, ये यहाँ पे जो फीमेल फ्लावर्स है वो फीमेल फ्लावर्स को क्या कर गई, पोलिनेट कर गई। तो यहाँ पे उनका फंक्शन जो था पोलिनेशन का, प्लांट का, मेनली फिग में, तो फिग का पोलिनेशन का काम कंप्लीट हो गया। और वेस्प को क्या फायदा है माय डियर स्टूडेंट्स, तो वेस्प को एकदम सेफ प्लेस मिला, समझो, वेस्प को एकदम सेफ प्लेस मिला एग लेइंग करने के लिए। तो अभी उसके अंडे जो है वो कंप्लीटली प्रोटेक्शन वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स। इंसेक्ट में आप जानते हो मेटामॉर्फोसिस होता है, एग के बाद लार्वा निकलता है, लार्वा और यू कैन से कैटरपिलर जो बहुत ही वॉरेशियस फीडर होते हैं। तो बेटा लार्वा जो निकले यहाँ पे, वो लार्वा को भी इजीली यहाँ पे अवेलेबल है क्या, फूड। तो लार्वा को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ये जो फ्लावर्स है न्यूट्रल फ्लावर्स वगैरह, उसी में से लार्वा अपना न्यूट्रिएंट गेन करेगा, और जैसे ही लार्वा में से वापस इंसेक्ट बन जाएगा, मैच्योर बॉडी बन जाएगा इंसेक्ट का, तो ये विद द हेल्प ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग माउथ पार्ट यहाँ से पियर्सिंग करके वेस्प और तुम्हारा जो इंसेक्ट है वो बाहर निकल जाएगा। उसका मतलब ये हुआ माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर फिग के इन्फ्लोरेसेंस में ऐसा कोई भी चेंजेस आता है तो उसी के साथ वेस्प की बॉडी के फिजियोलॉजी में भी, स्ट्रक्चर में भी, साइज में भी उतना ही वेरिएशन आता है। दैट मीन्स ऐसा रिलेशनशिप, दोनों ही ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी रख रहे हैं, पर उतने लेवल का डिपेंडेंसी है कि अगर फिग के फ्लावर्स में ऐसा कोई भी चेंजेस आता है और अगर वेस्प में नहीं आता है तो दोनों के अंदर इनका पोलिनेशन नहीं हो पाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। और वेस्प को एक सेफेस्ट प्लेस चाहिए था रिप्रोडक्शन करने के लिए, वो नहीं मिल पाता। तो कोएवोल्यूशन में फिग और वेस्प का एग्जाम्पल बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है, जहाँ पे दोनों की डिपेंडेंसी एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा वे में दिखाई हुई है। लास्ट एग्जाम्पल हमारा जो है म्यूचुअलिज्म का, उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे ही यहाँ पे कोएवोल्यूशन है, ऐसे ही यहाँ पे एक लाइकन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। यू नो माय डियर स्टूडेंट्स, लाइकन ये भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज। एक फंगस है और फंगस का एसोसिएशन आल्गे के साथ है। देखो दोनों ही कंट्रास्ट है। एज यू नो फंगस का बॉडी है वो ए क्लोरोफिलस बॉडी होता है, दैट मीन्स वो अपना फूड नहीं बना पाता है। ओके, उसको तो डिपेंडेंसी रखनी है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फॉर देयर फूड एंड न्यूट्रिएंट। और जो आल्गे है उसका बॉडी है वो क्लोरोफिलस होता है। भाई ये तो अपना खाना बना सकती है आल्गे, तो फिर वो फंगस के साथ क्यों एसोसिएशन में होना चाहती है। माय डियर स्टूडेंट्स, आल्गे की लिमिटेशन है, उनको शेल्टर चाहिए। तो फंगस का ऐसा ही एज वी डिस्कस अर्लियर इन दिस रिलेशनशिप, जो फंगस का बॉडी होता है दैट इज अ हाईली फिलामेंटस एंड हैविंग अ स्पेस विद इन दैम। तो ये जो फंगल का फिलामेंटस बॉडी है वो सरफेस एरिया भी इंक्रीज कर लेता है। एक तो है सरफेस एरिया भी इनका इंक्रीज हो जाता है, और दूसरा है कि ये जो मिनरल्स वगैरह होता है वो मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन भी ये फंगस कर लेती है। बिहाफ ऑफ दैट आल्गे का बॉडी है, उसको यहाँ पे अच्छे से शेल्टर मिल जाता है। यूनिसेल्युलर आल्गे की बात कर रहे हैं, ऐसा मत समझना
देखिए algae मतलब जो बहुत ही फिलामेंटस बॉडी है, चिकनी है, खुद से वॉल पर लगी हुई है, ऐसी भी है और यूनिसेल्युलर भी है जिसको हम लोग माइक्रोस्कोपिकल वे देख सकते हैं। तो जो algal बॉडी है वो फंगस की फिलामेंटस बॉडी में अच्छे से शेल्टर लेगी। algae बिहाफ ऑफ दैट, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर लेगी। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से उसने जो फूड बनाया हुआ है वो फंगस को दिया जाएगा और फंगस मिनरल्स और बाकी की जो चीज़ें शेल्टर वाली वो प्रोवाइड करेगा algal बॉडी को। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसमें हम लोगों ने पहला रिलेशनशिप देखा, दैट इज बिटवीन राइजोबियम बैक्टीरिया एंड हायर प्लांट, दैट इज लेग्यूमिनस प्लांट बॉडी। सेकेंड एग्जाम्पल है सी एनीमोन एंड क्लाउन फिश का। थर्ड एग्जाम्पल है माइकोराइजा विच इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड हायर प्लांट के रूट सिस्टम, मेनली साइकस एंड पिनस जैसे प्लांट बॉडी है। यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल हम लोग ने देखा फिग प्लांट का रिलेशनशिप विद द वेस्प, दैट इज finding a safer place within this inflorescence of the fig. Fifth example, that is the lichen, that is a symbiotic association between the fungus and algae. There are many examples as you see in the nature. इससे अलावा भी आप लोग अगर नेचर में ऑब्जर्व करो तो ऑन द बॉडी ऑफ अ राइनो और अ कैटल मैनी बर्ड्स लाइक अ करैन है, ऐसे छोटे बर्ड्स है जो उसको फॉलो करते हैं या फिर उसकी बॉडी पर बैठते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एनिमल्स की बॉडी में ऐसे एक्टोपैरासाइट्स होते हैं और वो एक्टोपैरासाइट को खाने का काम ये बर्ड्स का होता है। ये भी एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है और म्यूचुअलिज्म का टाइप है जिसमें बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिशियल फॉर ईच अदर। सो नाउ आई एम गोइंग टू एंड माय लेक्चर अप टिल म्यूचुअलिज्म। थैंक यू वन।